So, good morning, everyone. Welcome you all on the YouTube channel Sahil Mittal. Here we are teaching you and giving you guidance related to Intelligence Bureau and Cabinet Secretariat, means research and analysis wing, any kind of prelims paper, descriptive paper, and interview exam. So here we are ready with the content IB SAU Tier 2. So the exam was just happened, and all the model answers we are going to show you. What should be the expected date of your interview or psychometric date, how you have to approach your preparation related to interview and psychometric test, and what should be the expected safe score for the combined Tier 1 and Tier 2. We are going to have such kind of answers in this video. So if you haven't joined our Telegram channel, Intelligence Bureau /RNAW, then you can join it by clicking @IB exam. The link will be given in the description also. Okay, if you have any kind of query, then you can just mail me on this mail and expect the reply within 24 hours. So in this video, you will get to learn what are the marks deduction criteria in Tier 2, safe score category wise Tier 1 plus Tier 2, expected result date, expected psychometric date, expected interview date, sample answers for Tier 2 descriptive prepared by security experts, and they are the model answers. So you just have to carry all the points in your mind, and you can just evaluate and manage your mind how much marks will you get if you have written any of the points from these model answers. How to prepare for psychometric test and how to prepare for interview. So let us start the session. So most of you have got Tier 2 marking scheme, Tier 2 Pressy writing as a very far difficult or complex thing. Why was it so? I don't know. So we were going through one poll, and there were many students. So for about 400-500 students at this time, 440 पे इतने बच्चे थे, और उनमें से 68% बच्चों ने लिखा कि प्रेसी टाइटल लिखा है, और 32% लोगों ने लिखा कि प्रेसी का टाइटल ही नहीं लिखा है. सो प्रेसी जो है 10 मार्क्स की थी. अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, आपने क्या क्या किया है और कितना कितना किया है. सो कंटेंट एक्यूरेसी एंड पैराफ्रेजिंग 4 मार्क्स. 4 marks will be given if everything is there, all main ideas, essential detail of the original text, using effective paraphrasing without altering the intended meaning. 3 marks मिलेंगे उनको जिनका एक्यूरेट तो है बट स्लाइट इनएक्यूरेसी या कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को उन्होंने छोड़ दिया है. 2 मार्क्स उनको मिलेंगे कि उन्होंने डिपिक्ट थोड़ा सा इनएक्यूरेट कर लिया है या कुछ पार्ट ऑमिट कर दिया है. पैराफ्रेजिंग तो की है लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट के दौरान हूबहू यूज कर लिया है, वर्बेटिम की तरह यूज कर लिया है विदाउट साइटेशन, कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं की है, कॉपी पेस्ट कर दिया है. 1 मार्क्स मिलेगा सिग्निफिकेंट इनएक्यूरेसीज इन कन्वेइंग द ओरिजिनल टेक्स्ट मेन आइडियाज. पैराफ्रेजिंग बहुत मिनिमम है और टू मच डायरेक्ट कॉपिंग की गई है, डायरेक्ट वर्ड्स को या टेक्स्ट को उठाया गया है जो भी टेक्स्ट है. और उसके अलावा यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे जिसने पूरे ओरिजिनल टेक्स्ट को या तो पूरा एग्जैक्ट कॉपी किया है या मिस इंटरप्रेट किया है और पैराफ्रेज करने में फेल रहा है. क्या आप समझ पा रहे हैं कि कितना सही आपने लिखा होगा? उस हिसाब से इस तरीके से मार्क्स मिलते हैं. टाइटल ऑफ द प्रेसी अगर आपने लिखा है तो आप गारंटीड 2 मार्क्स मान के चलिए अपने. अगर आपका टाइटल 3 to 5 to 6 वर्ड्स का है, मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है और एसेंस ऑफ द प्रेसी को एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली एनकैप्सुलेट कर रहा है तो बहुत बढ़िया है. अगर आपका टाइटल टॉपिक के हिसाब से ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से तो है बट मेन आइडिया के एसेंस के हिसाब से बहुत प्रिसाइज नहीं है, छोटा नहीं है, लंबा चौड़ा लिख दिया तो 1 मार्क. 0 मार्क मिलेगा या तो टाइटल मिसिंग है, इररिलेवेंट है, या मेन आइडिया से कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं होता है. सो 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड. सो ऐसा नहीं है कि 0 मार्क्स उसी को मिलेंगे जिसके प्रेसी का टाइटल नहीं है. अगर आपका प्रेसी का टाइटल इनकोहेरेंट या इररिलेवेंट भी है तब भी 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड. ओके. सुनील जी अभी थोड़ी देर में बात करूंगा मैं आपसे, बहुत ही शानदार आपने लिखा है. चलिए उसके बाद कंसाइजनेस के 2 मार्क्स मिलेंगे. 2 मार्क्स फॉर कंसाइजनेस. कंसाइज का मतलब ये होता है प्रिसाइज, कितना छोटा कर पाए, ज्यादा छोटा तो नहीं कर दिया है या जितना बोला है उतना ही छोटा किया है नहीं किया है, इस बात पर ध्यान दीजिए. 2 marks मिलेंगे. The Pressy is exceptionally concise, including all necessary information within the word limit without redundancy or superfluity. 1 mark will be awarded. The Pressy includes the necessary information but could be expressed more concisely. Minor redundancies or unnecessary elaborations are present. और 0 mark मिलेगा. Pressy जो है verbose है. Verbose का मतलब to say something more than required, बहुत ज्यादा कुछ कह देना with significant redundancies or unnecessary details that do not contribute to the main idea. उसके बाद adherence to word limit. Adherence to word limit के अंदर 2 बातें याद रखेंगे. यहाँ पे बोला था not more than 100. नॉट मोर देन 100 का मतलब है 10 to 15% को नीचे लेके जाओ, यानी मिनिमम 85 मार्क्स तो होना ही चाहिए, या फिर 85 वर्ड्स होना ही चाहिए. लेकिन 100 से 101 है, 108 है या 110 है, ये तो पक्का पक्का आपके 2 मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे. यानी कि वो टू शॉर्ट या टू लॉन्ग नहीं होनी चाहिए. 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे आपने अगर वर्ड लिमिट 100 वर्ड के अंडर में लिखी है, डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिव वर्ड चॉइस एंड ब्रेविटी. अगर आपने 1 to 10 वर्ड्स ओवर द लिमिट लिखे हैं तो 1 मार्क आपका कट सकता है, शोज एन एफर्ट टू बी कंसाइज. और 0 मार्क होगा 100 मार्क से ज्यादा ही, और उससे भी 110 से भी ज्यादा आपने वर्ड लिख दिए तो आपके 0 मार्क मिलेंगे, मतलब 2 में से 0 मार्क मिलेंगे. बात समझ में आई या नहीं? अगर मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज दे रहा हूँ तो ट्रीट समथिंग एज एन ऑथेंटिक आइडिया फॉर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट. ओके. नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, एडिशनल गाइडेंस फॉर मार्किंग, और ये भी प्रेसी राइटिंग के लिए है. आप जानते होंगे कि कितना भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो अल्टीमेटली तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव ही रहता है, हैंड राइटिंग के थ्रू, पंक्चुएशन के थ्रू, ग्रामर के थ्रू. तो लैंग्वेज की प्रिसिशन जरूर होनी चाहिए, व्हाइल नॉट सेपरेटली मार्क. प्रिसिशन इन लैंग्वेज एंड एप्रोप्रिएट टोन शुड इन्फ्लुएंस द स्कोर्स इन कंटेंट, एक्यूरेसी एंड कंसाइजनेस. उसके बाद ग्रामर एंड स्टाइल. Errors in grammar and style are not directly penalized unless they affect the clarity and accuracy of the pressing, in which case they could impact the marks awarded for content accuracy. उसके बाद आपके पास
होलिस्टिक कंसिडरेशन भी लेके चला जाता है। व्हेन असेसिंग द प्रेसी कंसीडर द डॉक्यूमेंट एज ए होल, इवन इफ वन सेक्शन इज वीकर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन अदर एरियाज कैन बैलेंस द ओवरऑल स्कोर। तो आप में से यहाँ पे एक बार सारे बच्चे बताइए कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे टॉन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 आ सकते हैं, बट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने मार्क्स अपने जोड़ के रख लीजिए। अभी थोड़ी देर में आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आप खुद निकाल पाओगे कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। एवरीवन कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, हृदय कह रहे हैं 7, चेतन कह रहे हैं 8, शिवानी 7, हितेश 6, अंकित 6, मयंक 7, साक्षी 9, महिमा 8, रवि 6, अमर 8, विशाल 8, वेरी गुड, संजय 9 और 10, दीपक 6 और 7, वेरी गुड वेरी गुड। स्टॉप 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 स्टॉप। चलो अब तुम इसको नंबर को जोड़ लोगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन और अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम ही रखना है ना, ज्यादा नहीं रखते। और फिर भी देखना तुम्हारा टीयर 1 प्लस टीयर 2 के स्कोर को जोड़ के दिखाऊंगा आपका बन रहा है या नहीं, और फिर खुद डिसाइड करना इंटरव्यू की तैयारी करनी है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग टोटल कितने मार्क्स का था जी? 30 मार्क्स का। और इस बार जिस तरह के टॉपिक थे उस हिसाब से हाईएस्ट अचीवेबल जाएगा 25-26 का, ठीक है। अब ये 25-26 किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा उसके ऊपर मैं आपको दो पार्ट में बातें बताऊंगा। एक तो अभी मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ एसए का, दूसरा इस सेशन के बाद में लास्ट में हम किस एसए में कौन कौन से पॉइंटर्स आने चाहिए थे, मैं आपको वो 40 पॉइंटर दे दूंगा। आपने उन 40 में से कितने यूज किए या कुछ भी किया या नहीं उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स बना दें। क्लियर है? ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक पोल कराया था जिसके अंदर 961 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, और सबसे ज्यादा बच्चों ने 42% बच्चों ने इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी वेन और बूंद लिखा है। सबसे पहले अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूं तो डिपेंडेंस अगर हमारी बढ़ रही है तो ये अच्छा है या बुरा है? अगर डिपेंडेंस बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, टाइम एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो सब लिख देंगे। लेकिन अगर किसी चीज से हमारी मेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या चीजें बढ़ भी रही है, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स के तौर पर एक नपी तुली बात बहुत सारे डाटा फैक्ट्स के साथ लिखनी थी। यस और नो? तो ज्यादातर बच्चों ने फैक्ट्स और फिगर को लिखा या नहीं, क्योंकि जो टॉपिक ज्यादा लिखा जाता है उस टॉपिक में वो चेक करते करते इतना बोर हो चुका होता है कि उसको फिर कुछ यूनिक चाहिए होता है। तो यहाँ जो ज्यादा बार लिखा गया है उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। और जो टॉपिक अपने आप में यूनिक था, जैसे 7 और 6% है, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म 6 और 7% है, इसमें अगर किसी ने थोड़ा सा भी जनरल भी लिखा है तो उसके एवरेज से ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? और शायद ये चीज क्लास में बताई भी गई थी कि आप लीक से हटके कैसे सोचें या कैसे करें। क्लियर? लेकिन अब जो लिख दिया लिख दिया। फिर एक वर्ड काउंट मेरे को एक बच्चे ने भेजा, बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 800-900 बच्चों ने ये पोल क्रिएट करके आपस में पूछा था, और उसमें से पूछा कि तुम लोग आपस में कितना ऐसे लिख कर आए हो वर्ड काउंट लगभग। तो आप देख पा रहे होगे 15% बच्चों ने कहा 300 टू 350, 22% ने कहा 350 टू 380। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। 29% लोगों ने कहा 380 टू 410, ये भी बेस्ट है। लेकिन जिन लोगों ने कहा 410 टू 450, ऐसे लोगों की संख्या भी 26 और 8% के आसपास है। तो आप देख रहे हो अधेरेंस टू वर्ल्ड लिमिट भी कितनी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है यहाँ पे। क्या हम कॉम्प्रिहेंसिव बात कर पा रहे हैं? क्या आप लोगों से जितनी बातें कल की गई है क्या उनका निचोड़ देने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, चलिए उसके अंदर अब निकाल के देखिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कंटेंट एंड रेलेवेंस टू नेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे पांचों के पांच टॉपिक को आपको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर दिखाना था, वो 10 मार्क्स का था आउट ऑफ 30। तो पहले तो ये देखो क्या आपने जो टॉपिक लिखा है उसमें नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, बायो वॉर, कुछ भी ऐसा आ रहा है या नहीं? पहली बात, अगर आ रहा है तो अपने आपको 10 नंबर अवॉइड कर दीजिए, यानी 30 में से 10 तो आपके आ रहे हैं पक्का। फीलिंग हैप्पी? हाँ जी, फीलिंग हैप्पी, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके अंदर कितने मार्क्स करने हैं? द essay is highly relevant to the topic, demonstrates a thorough understanding and provides insightful analysis and substantial evidence। तो आप 10 या 9 मार्क्स, 10 या 9 मार्क्स को एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका ऐसे रेलेवेंट है, गुड अंडरस्टैंडिंग है, साउंड एनालिसिस है और सफिशिएंट एविडेंस है, पर थोड़ा सा नॉर्मल है, 8 टू 7 मार्क्स। अगर कंटेंट जनरली रेलेवेंट है बट कभी कभी स्ट्रे फ्रॉम द टॉपिक और इंक्लूड सम इररेलेवेंट डाटा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा चेक करते करते आदमी गोला लगा देता है, ये क्या है ये क्या है, उस तरह की चीजों में 6 टू 5 मार्क्स। और अगर ऐसे फ्रिक्वेंटली स्ट्रे ऑफ टॉपिक है या रेलेवेंस लैक करता है या डेप्थ नहीं एनालिसिस की, तो आप 1 2 3 4 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, इवन 0 भी। चलिए कितना क्लियर हो गया? तो भाई 30 में से कितने मार्क्स क्लियर हो गए? 10 मार्क्स। अब अगली बात, अब 10 के बाद अगली मार्क्स है 6 मार्क्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। द essay has a clear introduction, well developed body paragraph, concise conclusion, transitions are smooth। और ट्रांजिशंस के लिए, लॉजिकल फ्लो के लिए आपने however का, on the other hand का, in conclusion का, moreover का, furthermore का सही से इस्तेमाल किया। टोनालिटी के हिसाब से अपने आप को 6 मार्क्स दे दो। तो बताओ पहले में 10 और दूसरे में 6 अगर पूरे पूरे आ रहे हैं तो 16 मार्क्स तो सबके कंफर्म हो गए या नहीं 30 में से, और 25-26 से ऊपर आएंगे नहीं। तो 16 में से अपने आपको 12-13 तो दे ही पा रहे होगे, बहुत ज्यादा। अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है और ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ जो है वो बहुत स्मूथ या लॉजिकल नहीं है, 1-2 नंबर काटे जा सकते हैं, 5 कर लो, 4 कर लो या 4 से कम कर लो, वो अकॉर्डिंग टू फ्लो है, अनक्लियर स्ट्रक्चर के तौर पर। हाँ जी, आगे चलें। तो 10+6 के बाद अगला पार्ट आता है आपके पास 5 मार्क्स के लिए। अब 21 में से नंबर हो जाएंगे, और आपको मैंने बताया था ग्रामर एक अपना रोल प्ले करती है, ग्रामर एंड सिंटेक्स। अगर प्रथम दृष्टया वर्चुअली अगर कोई ग्रामर की मिस्टेक वैसे दिख ही नहीं रही है, बहुत खोजोगे तो कुछ भी निकाल लो यार, किसी की भी गलती निकाल लो, पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं दिख रही है, सो कोई दिक्कत नहीं, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। द लैंग्वेज इज क्लियर एंड सोफिस्टिकेटेड के सेंस में 5 मार्क्स। लेकिन कुछ माइनर ग्रामेटिकल या सिंटैक्टिकल एरर दिखते हैं दैट डू नॉट इंपीड अंडरस्टैंडिंग, जिससे अंडरस्टैंडिंग प्रभावित नहीं होती।
अब जैसे कोई लिखे इट टुक 70 ईयर्स टू डेवलप इंडिया और इट हैज टेकन 70 ईयर्स टू डेवलप इंडिया, तो लगभग बात सेम समझ में आ जाती है। बट इट इज टेकिंग 70 ईयर्स टू ग्रो इंडिया, टू डेवलप इंडिया में वो 70 साल ले रहा है, अभी नेक्स्ट वाले या पिछले वाले ने लिए हैं, तो यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग लैक करती है कि आप फ्यूचर की बात करना चाह रहे हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात करना चाह रहे हो, ये सुनो। तो यहाँ पे आपका 1-2 नंबर कहीं कट सकता है, वो ज्यादा मिस्टेक है तो 3 से कम भी दे सकता है, नॉर्मल है तो 3-4 दे सकता है, और अच्छा है तो 5 नंबर पूरे दे सकता है। क्लियर है? हाँ भाई, छोटे बच्चों। अगली बड़ी बात के तौर पर क्लास क्लास क्लास, उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगली बात आती है 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए आर्ग्यूमेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज के बेस पे आपसे इंटरव्यू के सवाल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने शायद बताया था पिछले साल के बच्चों ने हमें, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर इंटरव्यूअर्स के पास या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले लोग थे, उनके पास आपकी टीयर 2 की कॉपीज की फोटो कॉपी थी, और वो वहां से एक बार आपकी हैंडराइटिंग, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका लेवल प्लेइंग, आपकी कटिंग, ओवर राइटिंग, ये सब सारा देखते हैं वो लोग, और आपकी पर्सोना या पर्सनालिटी को इवैल्यूएट फिर से करने की कोशिश करते हैं, आपकी हैंडराइटिंग को चेक करते हैं, कैसे नो। तो वहां पे आपका अगर आर्गुमेंट बड़ा कंपालिंग है, अगर आपने सोल्यूशन या सजेशन में लिखा है कि अवेयरनेस या एजुकेशन देके हम ये कर सकते हैं, तो ये बात तो बड़ी जनरल सी है। लेकिन आपने अगर सजेशन में और सॉल्यूशन में अभी तक इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या करना चाहिए, और नीति आयोग की भूमिका क्या बननी चाहिए, आने वाले दिनों में एनजीओ के रोल कैसे बनने चाहिए, इस तरह की कुछ नई और अच्छी बातें, बड़ी बातें, और न्यूज़पेपर की रीडिंग, एडिटोरियल की रीडिंग की हुई बातें कुछ लिखी हैं, जैसा आपको बताया था, तो ये आर्गुमेंट ज्यादा कंपाइलिंग, लॉजिकली डेवलपमेंट वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस और एग्जांपल वाले होते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग इज एविडेंट थ्रू आउट, और तब आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। जनरली कोई भी चेकर इसमें 5 आउट ऑफ 5 किसी के भी नहीं देता, क्योंकि हर आर्गुमेंट का एक तोड़ उसके पास होता है कि इससे भी बेहतर ये भी तो हो सकता था, इससे भी बेहतर ये भी तो हो सकता था, ये सुनो। ठीक है, तो इसके अंदर अपने आपके 4 नंबर देके रखिए बस। ठीक है, डेप्थ अगर नहीं है, लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, पुअरली डेवलप्ड है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मार्क्स को डिडक्ट करते जाएंगे। शुड आई मूव ऑन? उसके बाद आपके पास स्टाइल एंड वोकैबुलरी की बात आती है 3 मार्क्स के लिए। स्टाइल एंड वोकैबुलरी, द राइटिंग स्टाइल इज एंगेजिंग एंड अप्रोप्रिएट विद प्रिसाइज एंड वेरिएड वोकैबुलरी। आप में से कई लोगों का, आप लोगों ने शायद इवैल्यूएशन के दौरान बहुत सारे लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, कई लोगों ने कंक्लूजन पढ़ा होगा, और पढ़ते पढ़ते ऐसा मन किया होगा, वाह क्या लिख रखा है, क्या भाषा बना रखी है, कितने अच्छे शब्दों का, लहजे का इस्तेमाल करता है। इससे पता लगता है कि वो पर्सन लिखता अगर इतना प्यारा है, हैंडराइटिंग नहीं, लिखने की, राइटिंग की बात है, तो वो बोलते वक्त कितना मैनेजेबल, डिप्लोमेट या कन्विंसिंग नेचर में काम करेगा। यस और नो? तो उनके दिमाग में लिखा कैसा है, इस बेस पे आंसर नहीं जाएंगे, ये पर्सन कैसा सोच पा रहा है, इस बेस पे आंसर जाएगा, मार्क्स का अवार्ड जाएगा। सो अगर आपने जनरली अप्रोप्रिएट लिखा है, फेयरली गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी लिखा है, तो 2 मार्क्स, नहीं तो 3 मार्क्स। अगर आपकी वोकैबुलरी या स्टाइल बहुत सिंपल सी है, और या फिर कभी कभी इनअप्रोप्रिएट हो जाती है, तो 1 मार्क। और अगर सब कुछ बेकार सा है, लिमिटेड है, इनकरेक्ट है, तो 0 मार्क्स। उसके बाद अगर आपने इंस्ट्रक्शन को अध्ययन नहीं किया है, इसका मतलब अगर आपने 400 से ज्यादा लिख दिया है, तो वो जितने मार्क्स देगा उसके बाद 1 मार्क उसमें से माइनस कर देगा, अगर 10-20 वर्ड ही ऐड किए। अगर आपने 100 वर्ड ऐड करके हैं, तो समझो 5 नंबर और काट लेगा, क्योंकि वो फालतू मेहनत करने वाला नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ 20 वर्ड्स पे 1 मार्क डिडक्ट होगा अगर एक्स्ट्रा लिख रखा है। ठीक है, चलो भाई, अब अपने ऐसे में नंबर बताओ कितने बन रहे हैं तुम्हारे। सर अभी पॉइंट तो बताइए नहीं, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होने थे, वो थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप बताइए, आप में से कितने मार्क्स बन गए। तो हृदय कह रहे हैं सर 23, राहुल कह रहे हैं 22, सागर कह रहे हैं 21, नीलेश कह रहे हैं 23+, रवि कह रहे हैं 19, अंकित 23, विजय 20, प्रियंका 20, विकास 21, महिमा 23। वेरी गुड, मतलब मोर और लेस मिला के चले तो सब लोग 20-23 की रेंज में है, ये सुनो। अब बताओ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके 30+ हो रहे हैं। अगर आप पिछले और इस क्वेश्चन से 30+ हो गए हो, तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर लो। अभी मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स नहीं बताए, उसके आपको पता ही है, लेकिन आपको मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी एक डिटेल दे देता हूँ, उसके बाद आप अपना कंबाइंड स्कोर बताएं। चलो, हाँ जी, 1 से 2 मार्क्स कट भी सकते हैं अगर एप्लीकेबल होगा एसए के अंदर, थोड़ा सा खुश ना हो। अगर आपने रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट को फेल हो गए हैं, अगर आपने स्पेसिफिक रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं एड्रेस किया है, अगर आपके मेजर पॉइंट्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं बिना न्यू इन्फॉर्मेशन के दिए, या फिर कोटेशन का ओवर यूज है, या इतनी जनरल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो जिसमें आपका पर्सनल इंसाइट का ही पता नहीं लगता, तो भी दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे में जिन लोगों ने अंडरलाइन कर आए होंगे उन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। सो इफ यू हैवंट अंडरलाइन देन इट विल नॉट डिडक्ट द मार्क्स, इट विल बूस्ट द मार्क्स। एक्चुअली अंडरलाइन लिखने से उसको पढ़ना कम पड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख के फटाफट नंबर दे देता है। ठीक है, तो उसके मार्क्स कटते नहीं है, मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजेदार सेशन है ना। बोले सर ये तो पहले ही बता देना चाहिए था पेपर से, कौन सी मार्क्स कितने नंबर के कटेंगे, फिर तो तुम पूरे यही नापते रह जाते, अब मेरे 10 पूरे हो गए, मेरे 6 नंबर पूरे हो गए, अब 4 पूरे हो गए, फिर तो लिख ही नहीं पाते तुम लोग, है ना। चलो, अब मार्किंग स्कीम फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब आपके हो सकते हैं, तोते उड़ सकते हैं। टोटल मार्क्स 10, हाईएस्ट अचीवेबल 10। अब देखते हैं आपके 10 में से कितने आ रहे हैं। पहली बात, ईच क्वेश्चन वर्थ 2 मार्क्स, बिलो इज अ डिटेल्ड क्राइटेरियन फॉर ग्रेडिंग ईच रिस्पॉन्स।
एक्यूरेसी ऑफ आंसर, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी ऑफ आंसर है 2 मार्क्स मिलेंगे। द रिस्पॉन्स इज कंप्लीटली एक्यूरेट एंड डायरेक्टली एड्रेस द स्पेसिफिक्स ऑफ द क्वेश्चन, द आंसर डेमोस्ट्रेट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। आपने 2 जून वाली इवैल्यूएशन देखी होगी हमारी मेगा टेस्ट की, उसमें शायद कई बच्चों के 1.5 टू 1.5 ऐसे करके जोड़ मिला हुआ था। अब वो 2 भी मिल सकते हैं, 1.5 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, 0.5 भी मिल सकते हैं, और 0.5 के अलावा 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा पीपीटी इधर उधर होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये मिलेंगे कितने लोगों को और कैसे कैसे। अगर आपका आंसर कंप्लीटली इनकरेक्ट या इररेलेवेंट है तो 0 मार्क्स, मोस्टली इनकरेक्ट है बट कुछ अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है 0.5, पार्शियली करेक्ट है लेकिन सिग्निफिकेंट डिटेल उसमें नहीं दी है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है 1 मार्क। अगर मोस्टली करेक्ट है बट माइनर इनएक्यूरेसी है ग्रामर की या कुछ भी, 1.5 मार्क्स। और पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही से कॉम्प्रीहेंड करके अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ग्रामेटिकली भी सही है, कॉन्टेक्चुअली भी सही है। क्लियर है? अब अगर ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपने ऐसे दिए हैं तो आप बताइए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो टोटल मार्क्स बताइए कितने बन रहे हैं। नो 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 नो, टोटल आउट ऑफ 50, टोटल आउट ऑफ 50 बताओ। हृदय 39, अंकित 36, अभी 33, उमेश 41, अनुराग 39, शिवानी 38, अभिषेक 38, अमर 38, विशाल 35, साक्षी 40 प्लस, संजय 40 प्लस, विकास 36, राहुल 33, विजय 38। कोई 30 से नीचे वाला है ही नहीं हमारे बैच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लो, समझ में आ गया। चलिए, अटेंडेंस एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने रहे हैं। तो टीयर 2 के लिए 9950 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, लेकिन मुंबई में या कई ज़्यादा शहरों में कुछ बारिश थी, कुछ जगह धूप बहुत ज़्यादा थी, कुछ जगह इंटरेस्ट कम था, कुछ जगह बच्चे पहुंच नहीं पाए थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, और इस हिसाब से जो एवरेज अटेंडेंस का स्कोर हमारे तक पहुंचा है वो 75% है। एक बार आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जितने भी बच्चे यूट्यूब पे अभी सुन रहे हैं, कि आपकी क्लास में कितने टोटल बच्चे को बुलाया गया था और टोटल कितने बैठे थे, मतलब एब्सेंट कितने थे। उस परसेंटेज को यहाँ लिखिएगा तो और ज़्यादा माइन्यूट डाटा यहाँ पे निकल सकता है। यहाँ वाले रुक जाओ एक बार। और अब आप देखिएगा टीयर 3 के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 4975 लोगों को, और टोटल वैकेंसी कितनी है 995। तो अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा सा आता है तो लड़ाई कितने में से कितने की है, 1:5, यानी हर 5 बच्चे में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा और 4 को फेल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो फर्स्ट फाइनल लिस्ट जो आएगी ये तो उसके बच्चे। अगर मैं आपको टोटल सिलेक्शन यहाँ से बता दूं तो टोटल कितनी है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो इंटरव्यू की तैयारी करेगा वो सफल होगा कैसे। एक बार ध्यान से सुन लेना, 995 लोग तो पहली लिस्ट में बुलाए जाएंगे। उसके बाद 2 महीने बाद R&AW से कम 250 लोगों को कॉल जाएंगे रिक्रूटमेंट के, और उसके बाद लगभग 750 लोगों को IB से वेटिंग के कॉल जाएंगे। इस प्रोसेस में आपका 1 साल से 1.5 साल लग सकता है। यहाँ पे आपके R&AW की कॉल आ सकती है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ही स्टूडेंट जो 973 प्लस सिलेक्शन 2020 की वैकेंसीज में हुए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों को कॉल आए, और आज बहुत सारे बच्चे देश के अंदर और देश के बाहर काम कर रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अगर आप देखो तो टोटल पोस्ट कितनी है 995, लेकिन अल्टीमेटली इस पेपर का फायदा मिलते वक्त मिनिमम कितने लोगों के सिलेक्शन होने हैं, 2000 लोगों के सिलेक्शन होने हैं। इसका मतलब जो प्रिपेयर करेगा वो सेलेक्ट होगा। क्या आप ऊपर के 1000 या ऊपर के 2000 में भी आने लायक नहीं हो क्या, इतनी पढ़ाई और इतनी मेहनत करने के बाद। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताने जो जा रहा हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, और ये है बहुत ही ऑथेंटिक डाटा, बहुत ही शानदार डाटा। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके टीयर 1 प्लस टीयर 2 में मिलाकर 86 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो प्लीज फील फ्री, अपने आप को स्टे एश्योर्ड मानिए, आप बहुत सही रेंज में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर आप 80 मार्क्स है, आप बहुत सेफ स्कोर में। अगर आप ओबीसी हैं, और ये सर अगर यहाँ 995 बच्चे सेलेक्ट हो रहे होते तो ये कट ऑफ नहीं बनती। अभी 995 नहीं, अभी 4975 लोगों को सेलेक्ट करेंगे वो लोग। सो बहुत नीचे रेंज जा रही है, ये सुनो, और ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस करके ही ये चीज बनाई गई है। पिछली बार की भी आपको कट ऑफ हमारी याद होगी, जब हमने प्रीलिम्स की कट ऑफ दी थी कि क्या एवरेज कट ऑफ जा सकती है, और मोर और लेस 2-3 नंबर ऊपर नीचे वही रही थी। ये सुनो, अभी की भी मैं आपको बता दूं, और IB नेवर रिलीजेस द कट ऑफ, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के बेस पे ही काम चल रहा है। क्लियर है? अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 79 मार्क्स, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 77, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 74, और अगर आप ईएसएम से हो एक्स सर्विसमैन तो 60 मार्क्स के अप्रोच में आपके आ रहे हैं टीयर 1 प्लस टीयर 2। तब यहाँ पर आप बिल्कुल मान सकते हो अपने आप में क्या है। टीयर 1 का अगर आपको एवरेज स्कोर पता है, जिन लोगों का क्लियर हो रखा है वो उसमें लगभग 30 जोड़ लीजिए, 30 जोड़ लीजिए, और आपको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगी। तो उसको 30 जोड़ने पर क्या इससे ज्यादा नंबर बन रहे हैं या नहीं, ये बता दो बस। 30 नहीं जोड़िए, जितने आपके बन रहे हैं उस मार्क्स में उतने जोड़ लीजिए। प्रीलिम्स की जनरल की कट ऑफ जितना मुझे आइडिया है रो स्कोर के हिसाब से 55 56 के आसपास गई थी। रो नहीं, नॉर्मलाइज्ड है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप में से जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं एक बार फटाफट से नीचे लिख दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा पता लग सके। अब सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर इतना सब कुछ तो बता दिया, एक बार वो सब भी तो बता दीजिए कि आखिर एस्से के अंदर पॉइंटर्स क्या क्या डालने थे, आखिर एस्से के अंदर पॉइंटर्स क्या क्या डालने थे।
तो समझो इसको ध्यान से। अब पॉइंटर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, चलिए एक बार मेरे को सारे बच्चे बताइए क्या आपको चीजें दिखाई दे रही हैं सामने शीट? ठीक है, ठीक। सो ये कल आपके पास एग्जाम आया है ना, और इस एग्जाम का थोड़ा सा और खुलकर बात करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। एक बार मैं पोज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग से। सो अब सारे बच्चे जो है एक बार देखिएगा आपने क्या क्या लिखा है, और आईबीएसईआईओ इंटरव्यू के साइकोमेट्री के बैच से पहले आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है उस पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आए हैं, किस तरीके से आपको लिखना था, क्या क्या उसके अंदर बैलेंस करके चलना था, वो सारी की सारी बातचीत यहाँ से करना। देखिएगा अब एक एक करके देखना और थोड़ा सा कमेंट पे रोक लगाना। आपकी एज इट इज कॉपी को हमने यहाँ से ले लिया है। 5 आपके पास ऐसे आए थे। पहला टॉपिक आपके पास था वुमेन्स एजुकेशन एज ए प्री रिक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस। वुमेन का टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि इसी साल विमेन रिजर्वेशन बिल लागू हुआ। ये सुनो, इसी साल मतलब इसी पिछले बार के जो आईबी का एग्जाम होता है उसके बाद से लेकर अब तक की। उसके अलावा ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई पिछले दिनों, वुमेन एंड स्टेम। जब स्टेम कहते हैं तो शायद आपको मालूम होगा अपनी क्लास के बाद, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, द इनएक्सप्लिकेबल गैप बिटवीन एजुकेशन एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इससे रिलेट करके यहाँ पे कुछ लिखा जाना चाहिए था। और ये टॉपिक शायद क्लास में करवा रखा है, याद हो तो आप, वुमेन एंड स्टेम का। दूसरी बड़ी बात, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वुमेन्स एजुकेशन इज वाइटल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। इट नॉट ओनली एम्पावर्स women but also contributes to economic growth, health improvements, and social harmony. Historically, gender disparities in education have hindered social progress, और bridging this gap is crucial for sustainable development. इसमें आप करंट अफेयर के तौर पर NEP 2020 डाल सकते थे, बताओ पढ़ा रखा है या नहीं। उसके बाद इंक्रीजिंग फोकस ऑन स्टेम एजुकेशन फॉर गर्ल्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पढ़ा रखा है या नहीं। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के इनिशिएटिव पढ़ा रखे हैं या नहीं। उसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट्स को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चल रहा है, वो सब पढ़ा रखा है या नहीं। और उसके बाद जेंडर इक्वलिटी को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम में क्वालिटी एजुकेशन का मेंशन है, उसकी तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है या नहीं। उसके बाद इसके अंदर डाटा या स्टैटिस्टिक्स के तौर पर आपने कितनी बातें लिखी है या डाली है, लिटरेसी रेट के ऊपर, स्कूल एनरोलमेंट के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, या हेल्थ आउटकम्स के ऊपर। सर बात अगर एजुकेशन की हो रही है तो हेल्थ की बात क्यों करनी है, क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी हेल्थ होगी उसका एजुकेशन लेने का जो क्राइटेरिया बनेगा और जो एनरोलमेंट रेशो बनेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, वो भी ज्यादा होगा। अगर आप ज्यादातर दिनों में बीमार रहते हैं तो आपकी एब्सेंटिज्म भी तो ज्यादा हो जाएगी स्कूल से, ये सुनो। तो डायरेक्टली रिलेशन है हेल्थ का एजुकेशन के साथ। तो वुमेन हेल्थ को बढ़ाओगे तो वुमेन एजुकेशन भी अपने आप बढ़ जाएगी। इसका मतलब मल्टीपल लेवल पर थॉट प्रोसेस बनाया जा सकता था इस विशेष टॉपिक के लिए। ये सुनो, बोलो यस, है ना, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो बच्चे। फिर इसके अंदर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं कल्चरल बैरियर्स है, क्योंकि माइंडसेट कैसा है लोगों का, स्टीरियोटाइप है। महिलाओं को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलते हैं कई बार, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी नहीं मिलती है रूरल एजुकेशन में, और कई बार तो सेफ्टी कंसर्न भी है, हैरेसमेंट है, वायलेंस है ना, एसिड अटैक है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें। अब आपने चैलेंज थोड़े से बताए, तो वुमेन को अगर एजुकेशन दी जाएगी तो इसका कनेक्शन नेशनल या इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी से क्या है, क्या ये बात भी जोड़नी सिखाई है हर चीज की, हर टॉपिक के बारे में। तो इसमें आप क्या लिख सकते थे, इससे सोशल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर सोशल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी बनेगी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा तो पॉवर्टी घटेगी, और पॉवर्टी घटेगी तो रेडिकलाइजेशन भी कम होएगा, और जैसे ही रेडिकलाइजेशन कम होएगा तो इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, नेशनल ग्रोथ बढ़ेगी, नेशनल डेवलपमेंट बढ़ेगी, फिर जोड़ लोगे वैसे वैसे करके, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप लिख सकते थे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, अगर पढ़ी लिखी महिला है तो हेल्थ इंप्रूवमेंट कर सकती हैं, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कर सकती हैं। तो पिछले दिनों में गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से आए, मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ, आपने इसमें से कुछ भी एक दो मिस किए हैं नहीं किए हैं वो आपके ऊपर है, बस इसमें से एक दो लिखने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील स्कीम, डिजिटल साक्षरता, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, NPEGEL, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, या वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम, कुछ इस तरह की चीजें हैं। बाकी आपने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड की होगी। सोल्यूशन के तौर पर कम्युनिटी एंगेजमेंट, इकोनॉमिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, लीगल फ्रेमवर्क पे अभी तक काम किया गया है। और किस चीज़ पर और भी काम किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे रोल मॉडल्स को प्रमोट किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग की संख्या बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन्स बढ़ाए जाए, एनजीओ के साथ पार्टनरशिप बढ़ाई जाए, और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी किया जाए। जो माँ बाप अपने बच्चों को माइंडसेट के स्टीरियोटाइप होने के कारण बच्चों को पढ़ाते नहीं है, उन पेरेंट्स को भी इस शिक्षा की जगह के अंदर बढ़ाना और प्रमोट करना चाहिए, ये सुनो। उसके बाद सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होना चाहिए, और कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो इतना सब कुछ अगर आप लिख सकते हो तो फिर आप कंक्लूजन के साथ इसको समअप कर सकते हो। तो आप में से कितने लोगों ने ये वाला टॉपिक लिखा है, और इतने पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स अगर ऐड किए हैं तो आप एक एवरेज नंबर लेकर चलिए, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, यस और नो। कितने बच्चों ने ये लिखा है एक बार बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा बच्चे होंगे शायद, और सबसे ज्यादा बच्चे सुनना चाहते होंगे कि सर इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना था। चलिए, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ब्रेन और बूम। सबसे पहले अहमदाबाद मिरर में एक खबर छपी, गांधी जी एडवाइज वाया हिज फेमस थ्री मंकीज, बट विद इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देयर इज नाउ अ फोर्थ मंकी, द वन हु इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया और मोबाइल। इज मोबाइल द बून और बेन ऑफ मॉडर्न एक्जिस्टेंस, योर कमेंट्स।
कुछ इस तरह की चर्चाएं पिछले दिनों चल रही थी। यहाँ पे सोशल मीडिया को, मोबाइल को, इंटरनेट को, एआई को इकट्ठा करके क्या बोल दिया? टेक्नोलॉजी। यस और नो? तो बात तो वही होगी ना, बून और बेन के हिसाब से। आपको पता लग रहा है कि पेपर आया कहाँ से आज? पूरे पेपर का सोर्स बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये चौथा मंकी ये रहा, मोबाइल चलाने वाला, है ना, सारा दिन जूम पे बैठा रहने वाला। फिर आप भी तो बैठे हो, मैं तो क्रिएटर हूँ, आप कंज्यूमर है ना। मैं कंज्यूम थोड़ी नहीं कर रहा हूँ जूम को, मैं तो क्रिएट कर रहा हूँ। चलो, इसमें लिखना क्या था? टेक्नोलॉजी ने परमिएट किया है ह्यूमन लाइफ को, कम्युनिकेशन से लेके हेल्थ केयर, एजुकेशन से लेके गवर्नेंस। बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया कोविड-19 के बाद, और इसने फिर एडवांटेज तो दिए, कुछ वल्नरेबिलिटीज, कुछ रिस्क भी प्रोवाइड किए। अब करंट अफेयर के तौर पे साइबर अटैक बढ़े हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल इंडिया से डिजिटल लिटरेसी और कनेक्टिविटी बढ़ी है, एआई ने इंपैक्ट डाला है जॉब मार्केट और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, ड्रोन्स के यूज करने से सर्विलांस बढ़ी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन डाटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन लॉस पर डिबेट शुरू हो गई टेक्नोलॉजी से। अब बताओ, क्या आपको जो 10 पेज दिए थे उसमें ये सारा कंटेंट था या नहीं? कितने लोगों को पता लगा कि सर आपको पता था पहले से क्या आना है क्या नहीं? मैंने पहले ही बोला था, लिखना यही पड़ेगा जो 10 पेज में दे रहा हूँ, अब कहाँ जोड़ना है वो डिकोडिंग पे पता लगेगा। वाओ, इवन यू आर वाओ। चलिए अगला देखिए, साइबर अटैक्स का डाटा स्टैटिस्टिक्स। 500% इंक्रीज इन साइबर अटैक इन इंडियन एंटिटीज इन द लास्ट 2 years. डिजिटल पेनिट्रेशन, 750 million internet users in India with a penetration rate of 54%. E-governance, 80% of government services now accessible online. Employment, 25% of jobs in technology dependent sectors. Healthcare, 70% increase in telemedicine consultation during the medicine. और यहाँ पे आप एजुकेशन वगैरह वगैरह किसी भी टॉपिक को और भी जोड़ सकते हो इफ यू हैव डाटा। बताओ कितना अच्छा डाटा है। उसके बाद चैलेंजेस, हाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये ई गवर्नेंस में ही तो आ जाएगी। चैलेंजेस के अंदर साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट है, डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, प्राइवेसी कंसर्न है, और हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो उससे हमें होगा क्या? साइबर सिक्योरिटी का कनेक्शन जोड़ सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी से, सर्विलांस जोड़ सकते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी जोड़ सकते हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग जोड़ सकते हो, या फिर डिजिटल वॉरफेयर जोड़ सकते हो। कर लोगे? उसके बाद गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए? डिजिटल इंडिया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, आधार, स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इन इंडिया, भारत नेट, साइबर सुरक्षित भारत, डिफेंस साइबर एजेंसी, CCTNS, ई क्रांति। बताओ ये सब लिखा है या नहीं? इनमें से कुछ लिखना था, सारे लिखने पॉसिबल भी नहीं है। सोल्यूशन क्या है? साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस किया है, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया है, जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, न्यू स्किल अप स्किल कर रहे हैं, लोगों को रीस्किल कर रहे हैं, डाटा प्रोटेक्शन के पिछले दिनों लॉज बनाए गए हैं, न्यू IT एंड सोशल मीडिया एक्ट बनाया गया है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को मेक इन इंडिया के तहत प्रमोट किया जा रहा है। ये सुनो, तो सजेशन क्या है? पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहिए, रेगुलर ऑडिट करना चाहिए, इनोवेशन को एनकरेज करना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क करना चाहिए, और समय समय पर सरकार को नए कानून या पुराने कानूनों में अमेंडमेंट करना चाहिए। बोलो कितना सा था? अब आपने कोई एजेंसी का नाम लिखा है, कोई मंत्रालय का नाम लिखा है, कोई किसी का कोर्स लिखा है, वो चेरी ऑन द टॉप है। ठीक है, चेरी ऑन द टॉप मतलब सोने पे सुहागा है, अच्छी बात। लो पॉजिटिव को और पॉजिटिव करने को इंग्लिश में बोलते हैं एमिलियोरेट। तो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एमिलियोरेशन यू डिड, बेटरमेंट। ये अब समझ में आ रहा होगा कि अब आपके कितने नंबर आ सकते हैं इतना लिखने पे, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। एआई जोड़ दिया, वेरी गुड, ठीक तो है, एआई जोड़ दो, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी है, कितने भी लेवल पे ले जाओ। चलो थर्ड पॉइंट देखो, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स ड्राइवर्स। पहली बात तो इस टॉपिक को समझना कैसे था। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो इक्विटेबल का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब सिर्फ जीडीपी से मतलब है, और जीडीपी के अलावा अगर हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन सेक्टर पे भी काम करते हैं तो वो डेवलपमेंट बनती है, और डेवलपमेंट तभी बनती है जब इक्विटेबल होता है। तो एक्चुअली ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है टॉपिक। तो डेवलपमेंट के ड्राइवर्स कौन कौन है? तो आप में से जो भी लोग हैवी ड्राइवर हैं, सॉरी जो भी लोग मतलब अच्छा लिखना जानते हैं, वो लोग डेवलपमेंट के ड्राइवर्स यानी फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात करनी थी। ठीक है, अब फैक्टर्स के बारे में शायद मोदी जी का सबसे प्यारा भाषण है कि जब मैं आया था तब 11वें पे था भारत, अब मेरा अवतार हो गया है, अब 5वें पे आ गया है भारत, और हम देखो अगले 2-3 साल 5 साल में तीसरे पे चला जाएगा भारत, और फिर 2047 तक हम बचे रहे तो हम फर्स्ट नंबर पे होंगे। बोलते हैं ना वो अपनी रैली में ऐसे, बस वही तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वही तो आपको शो करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिखाना पड़ेगा। अब बताओ कितने लोगों को पता है कि हमने एक ऐसा टॉपिक करवाया था पेपर से पहले, कंपैरेटिव एनालिसिस का। हार्ड पावर सॉफ्ट पावर की बात कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। क्या यूट्यूब पे करवाया गया था ये टॉपिक? अब देखो ना, मतलब कुछ अब आप ये कहो कि सर सेम टॉपिक नहीं आया, सेम टॉपिक नहीं, आप वो देखो कि कंटेंट ऑफ द टॉपिक कितना यूज करना था रेलेवेंस के लेवल पर। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या लिखा है। पिछले दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई, 10 years ऑफ मेक इन इंडिया हैज लेड फाउंडेशन ऑफ सॉलिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन कमिंग डेकेड्स। जेफरीज इक्विटी रिसर्च आउटलुक ने ये रिपोर्ट जारी की है। पिछले 10 साल में जीडीपी जो है 7% CAGR से बढ़ रही है, 3.6 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, और हमारा टारगेट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का है। यस और नो?
ये फैक्ट है ना, ये तो रटा हुआ है ना, ये तो हमने बार बार सुना है ना। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखो कौन कौन है। मेल प्लस फीमेल, ओल्ड प्लस चिल्ड्रन, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, रूरल प्लस अर्बन, जनरल प्लस ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी प्लस ईडब्ल्यूएस प्लस फुल बॉडी जिसकी पूरा शरीर है, कंप्लीट बॉडी, एक दिव्यांग पीपल। तो जो लोग भी वल्नरेबल सेक्शन है वो किसी भी तरह से सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे कोई भी वल्नरेबिलिटी को सफर कर रहे हैं, उस सेक्शन तक भी इकोनॉमिक ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन पहुंचना चाहिए। इसको हम इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ये डेफिनेशन समझा सकते हो। इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, मिनिमाइज इनइक्वालिटी और प्रमोट सोशल इंक्लूजन। अब इक्विटेबल करोगे तो इससे पॉवर्टी घटेगी। बताओ ये टॉपिक नेशनल सिक्योरिटी का हो गया या नहीं? कितने लोगों को लगता है सर नेशनल सिक्योरिटी से तो हम जोड़ ही नहीं पाए इसको, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी था या नहीं? ये तो जीडीपी जैसा टॉपिक लग रहा था। ओ माय गॉड तुरुला, कोई ऐसा टॉपिक है जो बिना नेशनल सिक्योरिटी के आया हो? जुड़ रहा है कि नहीं? जहां पॉवर्टी है जहां वल्नरेबिलिटी है वहां नेशनल इनसिक्योरिटी है। विकसित भारत 2047 लिख दिया सर, ठीक है बिल्कुल ठीक है। क्या विकसित भारत 2047 के नोट्स मिले थे या नहीं लास्ट में? इसके अलावा अमृतकाल वाला भी लिख सकते हैं, नोट्स मिले थे या नहीं? चलिए अब देखते हैं। कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ी है, इसलिए इंक्लूसिव रिकवरी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। उसमें हमने किसानों के लिए पीएम किसान, महात्मा गांधी एमजी नरेगा को थोड़ा सा और बूस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि भारत अपने आप में एक रूरल या एग्रेरियन कंट्री है। भारत की 60% से ज्यादा जनसंख्या खेती करती है, किसान है, गाँव में रहती है। तो पहले उन्हीं के बारे में सोचो, ये सब। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आया जिसने सेल्फ रिलायंस और लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया। उसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बातचीत चल रही है, जिससे वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर काम करेंगे। और ये चीजें पिछले दिनों में इनडायरेक्टली डीबीटी के थ्रू मिलना शुरू भी हो गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ग्लोबल मूवमेंट या डिस्कशन के तौर पर अगर देखें तो एसडीजी 10 में लिखा हुआ है हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंडर यूएन। अगर मैं कॉर्पोरेट डाटा के तौर पर बात करूं तो पॉवर्टी रिडक्शन में 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011-12, और अब जाके 25%, 25 लाख 25 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर आए हैं भारत की पॉपुलेशन की। बताओ ये बात जानते हुए नहीं तुम? उसके बाद इनकम कोफिशिएंट में गिनी कोफिशिएंट 0.35 है, जो कि मॉडरेट इनइक्वालिटी को शो करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश का 6.1% है अगर डाटा के हिसाब से देखें। इसका मतलब जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट की और ज्यादा जरूरत है। अर्बन और रूरल डिवाइड के तौर पर 66% ऑफ द पॉपुलेशन है जो जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या इनकम लेवल नहीं है वैसे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पर 420 मिलियन लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ा गया है, जिससे बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। तो इससे पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। तो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से लोगों की इनइक्वालिटी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, तो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल ग्रोथ और नेशनल डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगी। ये सब। अब नेक्स्ट टाइम से तो मैं सोच रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से जो भी हमारे बैच बनेंगे डिस्क्रिप्टिव वगैरह के, उसमें सेम ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, पैराग्राफ बना के नहीं पढ़ाएंगे, पॉइंट्स में पढ़ाएंगे। पैराग्राफ खुद बनाओ। ये सुनो, पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? सोचने के लिए डाटा, यही तो होना चाहिए। माइंड मैप से भी ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है ये, लेकिन ये मेरी नहीं है ये मॉडल आंसर्स है। चैलेंजेस है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी अभी देश में है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। फिर नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी से क्या लेवल रहता है, सोशल स्टेबिलिटी, रिसोर्स एलोकेशन, एम्पावरमेंट, क्राइम रिडक्शन, पॉवर्टी स्टेबिलिटी। जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है वो क्राइम रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के तौर पर क्या क्या है? पीएम किसान, एमजी नरेगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, शटअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जैम ट्रिनिटी। जैम का मतलब होता है जनधन, आधार और मोबाइल। एनईपी 2020 है ना, ये सारे के सारे मेंशन कर सकते हो। सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सजेशन मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आपके पास आया, फोर्थ टॉपिक, सोशल मीडिया एज रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से ये भी आपने बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। एक बार कमेंट करके बताना कितने बच्चों ने ये टॉपिक लिखा है। नहीं नहीं, ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये यहीं से पढ़ना पड़ेगा ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन। मान लो। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत सारे बच्चों ने सोशल मीडिया लिखा है। चलो देखते हैं। द यूट्यूब इलेक्शन, सोशल मीडिया इमर्जेस एज की प्लेयर इन इंडियन पोल्स। अब देखो, चुनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही था। अब टॉपिक देखो, इसने सिर्फ सोशल मीडिया बून एंड बेन नहीं लिखा, ट्रेडिशनल न्यूज को अक्रॉस द वर्ल्ड चेंज कर दिया। इसका मतलब सिर्फ इंडियन एग्जांपल देने थे या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी बताना? यस, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी बताना। ठीक है, अब समझते हैं कैसे लिखना था। कितना कैसा लग रहा है अपना रिसर्च पेपर? है ना काम का? सेम टू सेम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इंटरव्यू की तैयारी करनी, सेम टू सेम। चलो, एक खबर और आ रखी थी, हाउ एडवर्टाइजिंग नॉट सोशल मीडिया किल्ड ट्रेडिशनल जर्नलिज्म। अब सोशल मीडिया ने भी जर्नलिज्म को, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म को मार दिया। एडवर्टीजमेंट और फेक एडवर्टीजमेंट ने भी मार दिया, क्योंकि फेक न्यूज बहुत फैलती है सोशल मीडिया से। अब आप सब लोगों ने बुरहान वानी जरूर लिखा होगा, मुझे पता क्योंकि तुम रट के गए थे।
The advent of social media has revolutionized the dissemination of information, challenging the dominance of traditional news media. The transformation impact various facets of society, from politics and public opinion to national security and global relation. अब ग्लोबल रिलेशन वर्ड यहाँ डाल के आपने अक्रॉस द वर्ल्ड वाली बात छेड़ दी, है ना, हल्का सा इंडिकेशन दे दिया, ऐसे इंट्रोडक्शन लिख। उसके बाद इसका करंट अफेयर। कोविड-19 पूरे विश्व में आया, सोशल मीडिया ने इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की, बट कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई वायरस और वैक्सीनेशन के बारे में। यस और नो, दोनों बातें लिख दी ना। वर्ल्ड व्यू के हिसाब से पहले बड़ा एग्जांपल उठाया। दूसरा, इलेक्शन, रिसेंट इलेक्शन जो ग्लोबली हो रही है, सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में और कैंपेन को स्ट्रेटजी बनाने में शेप कर रहा है, चाहे इंडिया के, अमेरिका के या ब्रिटेन के कोई भी इलेक्शन। यस और नो। दूसरी बात, यहाँ पे आप में से कितने लोग नैरेटिव वर्सेस प्रोपेगेंडा की बात करके आएंगे? आप कितने लोग मानते हैं कि सर ये आपने पढ़ाया था या नहीं, नैरेटिव वर्सेस प्रोपेगेंडा? मजा आ रहा है या नहीं? उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट और मूवमेंट होते हैं, चाहे ब्लैक लाइव्स के मैटर की बात हो या मी टू मूवमेंट हो या फार्मर प्रोटेस्ट हो। मोदी जी थारी तोप खड़े हैं, हम दिल्ली आ गए, ये सारी बातें भी कहाँ से फैली? सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू। और फिर उस इंटरनेशनल इवेंट को आपने कनाडा से जोड़ा, कनाडा के साथ फिर अमेरिका से जोड़ा, और फिर आपने निज्जर से जोड़ा, फिर खालिस्तान से जोड़ा। बताओ कितना सारा काम हो गया आपके पास। क्या बताओ, आपके पास 10 पेज के नोट्स में ये सारी बातें लिख के दी गई थी या नहीं? कनेक्शंस। अब बताओ कितने लोग मानते हैं कि ये लिखना था या नहीं? सब लिखना था, सब आना था। 10 पेज से बाहर है क्या पेपर? टेक कंपनी के रेगुलेशन, सेंसरशिप और फ्री स्पीच। उसके बाद डाटा के अंदर आपको थोड़ा डाटा देना चाहिए, जैसे 4.5 बिलियन पीपल आर यूज सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड, अप्रोक्सीमेटली 62% ऑफ अडल्ट्स गेट देयर न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया। वो नोटिफिकेशन से पता लगता है देश में क्या चल रहा है ना, टीवी खोल के नहीं देखते। एंगेजमेंट के तौर पे टीवी जो है उनके पास नेटफ्लिक्स चलाने के लिए और चिल करने के लिए। नेटफ्लिक्स का तो मेरे को पता है, चिल का नहीं पता है। यूजर्स आर मोर लाइकली टू एंगेज विद न्यूज कंटेंट थ्रू शेयरिंग, कमेंटिंग एंड लाइकिंग। मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है, फेक न्यूज, पेड न्यूज, और ये 70% फास्ट फैलती है सोशल मीडिया से, जबकि जो सच्ची खबर है वो कभी फैलती नहीं। और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं एडवर्टीजमेंट से, जो कि ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया को आउटपेस कर रहा है, और इसके कारण ये सारा बैठा बैठा हुआ है, सारा काम खराब हो रहा है। समझ में आया नहीं? इंडियन इलेक्शन की बात आप एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते थे। पॉलिटिकल पार्टी जो है सोशल मीडिया को लेवरेज कर रही है कैंपेनिंग आउटरीच के लिए, और यंग और टेक्स सेवी वोटर्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि जिसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल लोगों के हाथ में बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे मोबाइल को सीखने सिखाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के पास भी आ गया, किसान के पास भी आ गया, अनपढ़ के पास भी आ गया, इलिटरेट के पास भी आ गया। तो क्यों नहीं सरकारें सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचने की कोशिश करें? उसके बाद फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है इलेक्शन के दौरान, जिससे वोटर का परसेप्शन बिहेवियर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी पूरे के पूरे एफर्ट्स को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया के कंटेंट को जरूर देखता है कि फेयर प्ले हो रहा है या नहीं। और इस बार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें फेयर प्ले वर्ड का इस्तेमाल 11 11 12 बार किया है, अगर किसी ने सुनी हो। फिर बात करते हैं परसेप्शन और नैरेटिव। सोशल मीडिया से परसेप्शन और पब्लिक परसेप्शन बनाया जा सकता है। इको चैम्बर्स का काम करते हैं, ये एक नई टर्म हो सकती है आपके लिए, बाकी बच्चे जानते होंगे। सोशल मीडिया पे इको टर्म्स, एक ही बात बार बार गूंजती रहती है, तो इको चैम्बर बनता है, और वो उस इन्फॉर्मेशन के प्रति एक्सपोज हो जाता है कि क्या चल रहा है, और मेरे अभी तक के आइडिया और नोशन ये था, लेकिन बार बार लोग इस मुद्दे पे ये कह रहे हैं, शायद ये भी सही कह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ छुपाने के लिए भी झूठ बोलो, ऐसा एक बात किसी ने कहा था ऐसे। नैरेटिव कंट्रोल भी किया, अगर नैरेटिव फैलाया जा सकता है तो नैरेटिव को कंट्रोल भी किया जा सकता है सोशल मीडिया से, और वो सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया आईटी एक्ट जो बनता है उसके थ्रू। फिर बुरहान वानी का केस, बैकग्राउंड क्या था, सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या था, और सिक्योरिटी के कंसर्न क्या थे, वो सारा का सारा लिख दोगे। अगर आप में से किसी ने हिजबुल मुजाहिदीन का नाम भी लिखा होगा तो भी मजा आया होगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के चैलेंजेस क्या है, मतलब इसके पूरे के चैलेंज क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, कंटेंट मॉडरेशन, बाइस मैनिपुलेशन, प्राइवेसी इशू, डिजिटल डिवाइड, है ना। तो फिर नेशनल या इंटरनेशनल या सिक्योरिटी से कैसे जोड़ेंगे? इसके थ्रू रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन वारफेयर हो रहा है, क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन हो रहा है, सर्विलांस हो रहा है। फिर इसके अंदर क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब लिखा है, तो ग्लोबल मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, डिप्लोमेसी के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्रॉस बॉर्डर मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे हेल्पफुल है, टेक रेगुलेशन कैसे हो सकता है, और साइबर सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। फिर हमारे देश की गवर्नमेंट से इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया, साइबर स्वच्छता केंद्र वगैरह वगैरह लेके क्या क्या काम हो सकते हैं, वो सारा कॉमन पॉइंट यहाँ लिख देंगे। तो बताओ, पांचों टॉपिक को अगर एग्रीगेट करके देखो तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के अंदर इंटरमिंगल है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं? तो आपको बोला गया था इतने ज्यादा टॉपिक बनते ही नहीं है, थोड़े बहुत टॉपिक बनते हैं, उन्हीं में से घूम फिर के आए। समझ में आया आप गेम? लेकिन ये बात इंटरव्यू के लिए सही नहीं है। हर बच्चे का अपना बैकग्राउंड है, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपनी हॉबीज है, तो क्वेश्चंस भी फिर कस्टमाइज हो जाएंगे आपके अपने अपने। ठीक है, चलिए। सजेशन और सॉल्यूशन को आप एक बार यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना और मैच कर लेना। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया था इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट। शायद ये टॉपिक हमने सबसे ज्यादा बार पूछा, क्लाइमेट चेंज का नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट क्या है। शायद हमने पहला टॉपिक किया था टेस्ट में, बैचलर वाले बच्चे जानते भी होंगे। अब अगर आप ये वाला टॉपिक जानते हो तो इसके अंदर आपको लद्दाख के अंदर, हिमाचल के अंदर, अरुणाचल के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर, इवन लक्षद्वीप के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है। इसमें एक खबर के ऊपर जो है टॉपिक बना, जहाँ पे जब एग्जाम सेट हो रहा था तो जिस खबर को देख के ये टॉपिक बना है वो ये खबर, कैन लद्दाख एम्ब्रेस टूरिज्म व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स फ्रेजाइल इकोसिस्टम। एक अपने सेंसिटिव से इकोसिस्टम को बचाते बचाते क्या लद्दाख टूरिज्म को एक्सेप्ट या गले लगा पाएगा? क्या यही चीज इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंट। और टूरिज्म का मतलब क्या हुआ? टूरिज्म। क्या टूरिज्म का एनवायरमेंट पे फर्क समझ में आ रहा है यहाँ से और यहाँ से? ये जो टॉपिक बना इसमें डेट भी लिखी होगी कहीं या नहीं है तो थोड़ा, चलो इसमें लिखना क्या था, सबसे पहले टूरिज्म बताना था कि ये एक तरह का इकोनॉमिक ड्राइवर है, लेकिन इससे एक इन्वायरमेंटल चैलेंज भी होता है और इसके बीच में बैलेंस बनाना हो। शायद आपको याद होगा टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म भी किया था हमने कभी, है ना। हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे लद्दाख है, अंडमान निकोबार है, माउंटेन एरियाज है, जहाँ पे यूनिक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है ड्यू टू टूरिज्म। अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो टूरिज्म के बढ़ने से वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज बढ़ गए हैं और उसे लोकल रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आ गया है और उसके कारण सोनम वांगचुक को वहाँ आंदोलन भी करना पड़ गया। यस और नो? अब बताओ ये करंट अफेयर रिलेटेबल है या नहीं? उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट फायर, राइजिंग इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर इन टूरिस्ट हैवी रीजन्स लाइक उत्तराखंड एक्सासर्बेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये वाली खबरें बढ़ रही है या नहीं? दूसरी एक्वेटिक पॉल्यूशन, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज गोवा एंड केरला फेस सीवियर वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम इंक्रीज टूरिस्ट इन्फ्लक्स। सो क्या टूरिज्म से कैसे हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? एग्जाम्पल से प्रूव तो करना पड़ेगा। उसके बाद अंडमान निकोबार, टूरिज्म पुटिंग प्रेशर ऑन फ्रेजाइल मैरीन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी और अदर इंडियन स्टेट में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश डीलिंग विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मास टूरिज्म ऑन देयर नेचुरल लैंडस्केप एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। हिमाचल प्रदेश में शिमला है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। तो वहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी संख्या में मास टूरिज्म करते हैं। तो कितने लोगों को लग रहा है कि सर 25 मई का टेस्ट हो, मेगा टेस्ट हो 2 जून का, या डेली की आपकी सेशंस हो, डेली के स्पीड टेस्ट हो, या फिर जो लास्ट के 10 पेज की सारी चीज दी थी निचोड़ निकाल के, तो वो निचोड़ आप सब लोगों को इंटरव्यू का भी मिलेगा, करंट अफेयर का। लेकिन इंटरव्यू की डेट आने के बाद, क्योंकि अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो इंटरव्यू में नहीं पूछी जाएंगी, आज और आज के बाद से जो घटनाएं होंगी वो इंटरव्यू के लिए जरूरी है ना। तो वो इंटरलिंकिंग करके देंगे हर घटना का, हर छोटी छोटी घटना का। और उसके लिए जो हमारे जो प्रीमियम सब्सक्राइबर रहेंगे उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी स्टेट वाइज करंट अफेयर की लिस्ट भी बना के देंगे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े, स्टेट वाइज, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्टेट से पूछे जाएंगे। और बहुत जल्द हम आपके लिए एक और बढ़िया सेशन लेकर आ रहे हैं, स्टेट वाइज इंटरव्यू क्वेश्चन यूट्यूब पे लेके आएंगे। तो आप लोगों को अपने यूट्यूब के कमेंट में जाके डिस्क्रिप्शन में, मतलब नीचे कमेंट में लिख देना है आपका स्टेट कौन सा है और उसकी 5 मिनिमम 5 इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे लिख देना है जाके, ठीक है। चलिए उसके बाद डाटा और स्टैटिस्टिक्स के तौर पर टूरिस्ट अराइवल भारत में कितने होते हैं, ऊपर से फिर टूरिस्ट के आ जाने से वेस्ट जनरेशन कितना होता है, वाटर यूसेज कितना बढ़ता है, कार्बन फुटप्रिंट कैसे बढ़ता है और बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट कैसे बढ़ता है। अगर इस पूरे देश खेल को देखो तो नेशनल सिक्योरिटी पे इसका क्या कॉन्फ्लिक्ट है? रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिसोर्स इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी होती है, जिससे हमारे नेशनल इनसिक्योरिटी होगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन पड़ेगा, इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ती है, टूरिज्म के नाम पर ट्रैफिकिंग भी तो होती है हमारे देश में, टूरिज्म के नाम पे ट्रैफिकिंग भी तो होती है। कल शायद मैंने एक एग्जांपल दिया होगा अपने जून सेशन में, एलओसी लुकआउट केस का एक। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, इको टूरिज्म पॉलिसी, अटल मिशन फॉर रिजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कैंपेन क्लीन इंडिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंसेंटिव फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें सजेशन के तौर पर यहाँ पे आप ग्रीन सर्टिफिकेट को इंप्लीमेंट करना, ऑफ सीजन टूरिज्म को प्रमोट करना, है ना। सीजन में आने वाले लोग तो फिर एक साथ आते हैं, एक साथ गंदा कर जाते हैं, उसके बाद 8 महीने तक आते नहीं, तो ऑफ सीजन में भी लोग आए। एनहांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट के नंबर्स को लिमिट करना, ऑल्टरनेटिव टूरिज्म को डेवलप करना, मॉनिटरिंग को करना, लोकल इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करना, डिग्रेडेड साइट्स को रिहैबिलिटेट करना, ये तमाम काम इसके अंदर करने। ठीक है, कैसा लगा? यस 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 रुद्रान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका आरसी का आया हुआ था। आरसी के अंदर मैं आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, क्या आंसर होने चाहिए, तो आप मैच करना सारे बच्चे कि आपका लगभग वही आसपास का आंसर है या नहीं। द सॉल्यूशन फॉर टैकलिंग ओबेसिटी एंड malnutrition is essentially the same. Explain. इजी क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन फॉर टैकलिंग ओबेसिटी एंड malnutrition is essentially the same because, या एज बोला था, पूरी लाइन लिख के फिर आंसर लिखना, बढ़िया से आंसर बनाना है। As both require increasing the consumption of fruits, vegetable and pulses and increasing physical activity. This approach ensures balanced nutrition and helps maintain a healthy weight, addressing both issues simultaneously. What are the prime reasons for obesity? The prime reasons for obesity include increased affluence leading to higher consumption of processed foods, high in fat, salt, and sugar, and sedentary lifestyle. These factors contribute to excessive calorie intake and reduced physical activity, resulting in weight gain. सही लिखा है सही? ठीक। How is the economy of the country benefited from the health of its citizen? अब बताओ
हेल्थ ऑफ द सिटीजन को नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल ग्रोथ से जोड़ना सिखा रखा था। बिना देखे अपने शब्दों में वो लिख देते तो क्या चला जाता इसमें, वही आंसर बनता। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बेनिफिट फ्रॉम द हेल्थ ऑफ a citizen as healthier individual form a more productive workforce, improved health leads to fewer sick days, higher efficiency, higher greater economic growth stability, सब बढ़े। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, why children today suffer disproportionately more from obesity as compared to adults? Because children today suffer of obesity rates among children and adolescents since 1990. This is influenced by increased availability and consumption of unhealthy foods and a lack of physical activity. सब यही लिखा है, यही था। ठीक। What is a key finding? Finding का मतलब रिसर्च की रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में से विद रिगार्ड टू अर्बन एंड रूरल कंजम्पशन एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। क्या आपको बताया था लास्ट के 2 क्वेश्चन में व्हाई आएगा, एनालिटिकल आएगा, बोला था या नहीं? लास्ट के 2 क्वेश्चन, शुरू के 3 आसान आएंगे, बोलो भाई। चलो, a key finding of the household consumption expenditure survey 2023-23 is that rural households now nearly spends as much relatively as their urban counterparts on beverages and processed food. This is important as it indicates a shift in dietary habits across rural areas, contributing to rising obesity rates and associated health problems even in rural areas. कर लोगे तो यहाँ 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8 आने की पूरी पूरी संभावना होगी पूरे देश में। चलिए अब बात करते हैं प्रेसी की। और प्रेसी में मैं आपको 2 चीजें दिखाऊंगा। पहला सैंपल प्रेसी दिखा दूंगा जो कि आपके जिस मॉडल को देखिए चेक होनी है वो वाली दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखा दूं द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स। ये इसका एक टाइटल बनना था, क्या ये इसका है कुछ टाइटल बनने वाला? क्या इसमें से कुछ निकल के आ रहा था ऐसी बात? यस और नो? लेकिन कई लोगों ने एरिस के वगैरह के नाम लिख दिए इसमें, तो वो तो सिर्फ कहानी के पात्र हैं ना कुछ समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको लिखना कैसे था? द एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव्ड इन एरिस सिंबलाइजिंग द बैलेंस ऑफ अपोजिट्स सच एज गुड्स एंड एविल। गुड एरिस मेंटेन्ड हार्मोनी बाय एड्रेसिंग इश्यूज व्हाइल बैड एरिस रिजल्टेड फ्रॉम नेग्लेक्ट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। अब देखो गुड एरिस और बैड एरिस का मतलब है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, समझ रहे हो? इसका मतलब आपको इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको प्रेसी राइटिंग दी गई थी। जो पर्सन जीवन में अच्छा होना चाहता है वो जीवन में अपने सारे के सारे इश्यूज को पहले एड्रेस करता है, पहले एक्नॉलेज करता है, फिर एड्रेस करता है, फिर उसको रेक्टिफाई करता है। और बैड एरिस कौन होता है? जो अपनी गलतियों को नेग्लेक्ट करता है, जिससे उसका और डिस्ट्रक्शन होता है। द मिथ ऑफ किंग पैलेस एंड थेटिस illustrate this by not inviting Ares, the goddess of discord, to their wedding. They avoided potential marital problems. उन्होंने प्रॉब्लम को अवॉइड किया, लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट, जिससे प्रॉब्लम और ज्यादा कैटास्ट्रोफिक होगी, और ज्यादा एविल आई वाली हो गई, और ज्यादा डिजास्ट्रस हो गई। एरीज फ्यूरी caused a feud among goddesses. एरी के गुस्से ने एक लड़ाई झगड़ा करवा दिया गॉडेसेस के बीच में, सेटिंग द स्टेज फॉर द ट्रोजन वॉर। और उससे क्या हो गया? ट्रोजन वॉर हो गया, और इससे उनके अकिलेस नाम का जो सन था उसकी डेथ हो गई। दिस मिथ टीचेस दैट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स ओनली एक्सरसाइबेट्स देम। सो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? ये टाइटल है। टाइटल को आपने अंडरलाइन कर दिया होगा, लास्ट में वर्ड काउंट लिख दिया होगा, और वर्ड काउंट को सीधा लिखा हो या ब्रैकेट में डाला हो, जैसे भी किया हो, बढ़िया। अगर इतना लिखा है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। सबसे पहले सैंपल प्रेसी को देख के बताओ, मॉडल प्रेसी को देख के बताओ, आपको सही लग रहा है या आपको कुछ चैलेंज लग रहा है? तो आप समझो यहाँ पे एरिस टाइटल नहीं है, एरिस तो एक तरीका है बताने का, समझाने का। ठीक है, चलिए उसको पैराफ्रेज कैसे करना था इसके ऊपर मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। ओरिजिनल सेंटेंस को कैसे प्रोसेस करना था और छोटा कैसे करना था, ये सेम वही तरीका है जो हमने क्लास में भी लगाया था या नहीं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं IBACIO के टीयर 3 में इंटरव्यू क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, और उसके बाद साहिल सर के बैच में स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करने के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक देने के लिए, फीडबैक चार्ट प्राप्त करने के लिए, डेली करंट अफेयर देखने के लिए, डेली आपकी मीडिया प्रैक्टिस की रिपोर्ट और रिव्यू लेने के लिए, और साइकोमेट्रिक क्वेश्चन के अंदर पिछली बार से क्या चेंज एक्सपेक्टेड है और कितनी चीजें एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर मैं आप सबके सामने कुछ बातचीत रखना चाहता हूँ। चलिए दिखाई दे रहा है? तो अभी आपने जाना कि टीयर 1 टीयर 2 के अंदर आपके मार्क्स कितने बनने चाहिए। तो लास्ट टाइम, अब मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ साइकोमेट्री या इंटरव्यू बता रहा हूँ। लास्ट टाइम साइकोमेट्री और इंटरव्यू जो है वो डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे हुए थे, और उसमें कोविड की सिचुएशन भी थी, थर्ड लॉकडाउन, और ओमिक्रॉन भी आ गया था बीच में, याद हो तो किसी को ओमिक्रॉन याद है? दिस टाइम इट मे बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। तो 1 इंटरव्यू 1 साइकोमेट्रिक टेस्ट, 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरह साइमल्टेनियस हो सकता है, ये भी आपके पास चांस है। टीयर 2 की शीट्स जो है वो असेसमेंट सेंटर पे चली गई हैं और चली जाएंगी बहुत जल्दी, और असेसमेंट शीट्स को 20 से 25 डेज लगेगा इवैल्यूएशन का प्रोसेस पूरा करने में। समझ में आ रही है बात? और इतना पूरा करने के बाद आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक के अंदर, और साथ में आपको इंटीमेशन भी मिल सकता है एडमिट कार्ड का, साइकोमेट्रिक टेस्ट प्लस इंटरव्यू का। तो अगर आज 10 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप 10 जुलाई तक के लिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कंटेंट क्रिएट करने में, नेशनल सिक्योरिटी को पढ़ने में, अपनी हॉबीज, अपनी ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस बनाने में, और फिर मिरर प्रैक्टिस करने में, हैंड मूवमेंट को, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में मिनिमम 1 महीना लगता है, और ट्रस्ट मी 1 महीना भी कम पड़ता है कई बार। तो समझ में आ गई सबको? अब जो बच्चे थोड़ा सा समझ गए हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से जो करना है, रिसर्च थोरोली। सबसे पहले आपको
IBACIO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स या एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उस रोल को पहचानना कि आपका काम क्या है, उस काम के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो का मिशन क्या है, की एक्टिविटीज क्या है, रिसेंट न्यूज क्या है, या आईबी के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को रिव्यू करना है, जैसे आपके अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपका अपना करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में, या व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आईबी, आप क्यों चाहते हैं आईबी में ज्वाइन करना, इसका एक बहुत परफेक्ट आंसर तैयार करना। उसके बाद आपको कुछ आंसर करंट इवेंट्स पे देखने, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या आपके अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की कुछ खबरें। आप में से अगर कोई बनारस से है तो वो नेशनल खबर हुई या इंटरनेशनल, तो वो डिस्ट्रिक्ट की खबर हुई जो कि नेशनली इंपॉर्टेंट है। तो कुछ शहर, कुछ राज्य ऐसे हैं जो नेशन वाइड या इंटरनेशनल वाइड कभी कभी न्यूज में बढ़िया बने रहते हैं। यस और नो। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस बिहेवियर क्वेश्चन, जिसको हम एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलेंगे, या फिर हम एथिकल डायलेमा बोलेंगे, और हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम इसके कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 500 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के बेस पे, 100 क्वेश्चन आपके हॉबी के बेस पे, 100 क्वेश्चन आपके नाम के बेस पे, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे, 100 क्वेश्चन आपके नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे, और 100 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बेस पे। मुंबई वाले बच्चे ध्यान रखें, पिछली बार जो मुंबई के बच्चों से पूछी गई थी एसआरटी, वो आपके फादर के प्रोफेशन के नाम पर एक एसआरटी तुरंत क्रिएट की गई थी आईपीएस ऑफिसर के द्वारा। दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, ऐसी एसआरटी क्रिएट की गई थी। बिहार, पटना, रांची, रायपुर, इन एसआईबीज के अंदर, इन आईबी के रीजनल सेंटर्स के अंदर जो सवाल पूछे गए थे एसआरटी के, वो सवाल इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, मंदिर मस्जिद, कम्युनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करके पूछे गए। अभी पिछले दिनों में जो 3 साल पहले आईपीएस ऑफिसर थे, वही लोग अभी भी वही हैं, या उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई होगी, या उनका मेंटल सेटअप क्या चेंज हुआ होगा, इसलिए ये सारा कुछ आपको एक बार करके जाना होगा। समझ में आई है? क्लियर हो रहा है थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार मेथड को प्रैक्टिस करना है बिहेवियरल क्वेश्चन में। स्टार का मतलब होता है पहले सिचुएशन, फिर टास्क, फिर एक्शन और फिर रिजल्ट, और ये पूरा स्टार परफॉर्मेंस में आपको हर एसआरटी का बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आपको पास्ट एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करना है, अपनी जजमेंट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। हर क्वेश्चन के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाना है, और कैसे भी करके ये दिखाना है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। बहुत ही शानदार। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्माइल करनी होगी, कैलकुलेटेड स्माइल, ठीक है। अभी नहीं, इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू में। और इसलिए जो भी लोग इंटरव्यू बैच में आएंगे वो लोग कैमरा रोज खोले रखेंगे और थोड़ी सी स्माइल रखेंगे, ताकि आप सिलेक्शन तक पहुंच सकें, ताकि वो स्माइल आपकी आदत बन जाए। क्योंकि कई बार आप आंसर देते देते स्माइल करना भूल जाते हो। तो ये दोनों काम साथ में करने, आंसर देना भी, आंसर सोचना भी, और स्माइल करना भी। और ये बताओ, प्रैक्टिस का काम है या बनावटीपन का काम है? आप बहाना नहीं बना सकते, प्रैक्टिस का काम है। इसमें आपको अपने पूरे एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। एंड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज कॉल्ड गुड पर्सनालिटी। इसी को अच्छी पर्सनालिटी कहते हैं। इसी को कहते हैं कि किरदार से खुशबू निकल रही है आप, है ना। वो किरदार से खुशबू कैसे निकलती है? एक दो गुड़िया तो कल ऐसी थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने मेरे पैर के हाथ लगा दिया, ये लगाने की कोशिश की। अच्छी चीज है, संस्कार है। वही संस्कार झलकने भी चाहिए, चेहरे पे भी झलकने चाहिए। ठीक है, तो सारे एसआईबी की मैं आपको वो धीरे धीरे बता दूंगा, क्या बोलते हैं, सैंपल क्वेश्चंस क्या पूछे थे, पिछली ट्रांसक्रिप्ट क्या थी, वो धीरे धीरे हम अपने फिर सेशंस में शेयर करते रहेंगे। क्लियर है? कोई भोपाल में क्या था, मुंबई में क्या था, कर्नाटक में क्या था, आंध्र प्रदेश में क्या था, सबका देख लेंगे। उसके बाद कुछ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करें अपने आप से, अपने पेरेंट्स के सामने मॉक इंटरव्यू दें सबसे पहले, अपने भैया बहनों के सामने दें, सीनियर के सामने, अपने दोस्तों के सामने मॉक इंटरव्यू दें। उसके बाद आपको कोई जो अच्छा लगे उस पर्सन के सामने इंटरव्यू दें, ऑनलाइन इंटरव्यू दें, फिर ऑफलाइन इंटरव्यू दें, और फिर वो फाइनल इंटरव्यू प्रैक्टिस के तौर पर जरूर दें, जिससे आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज पे और आपके आंसर्स के फीडबैक आप किसी से पूछ सको कि सर सही था या नहीं। और मेरे ख्याल से उड़ीसा का भी बताएंगे हिमांशु जी, उड़ीसा का भी बिल्कुल बताएंगे। उड़ीसा के बच्चों ने पूरी कठिनाई को इग्नोर कर दिया, हम कौन सी खेती बोली, बीजेपी आ गई है वहाँ पे। तो करंट अफेयर पे इतनी अच्छी जानकारी रखनी है कि आपसे कोई आंसर पूछे या चुटकुला, तुरंत करंट अफेयर से जोड़ दो। इतना अच्छा रहना आपको, और उसके लिए मेहनत और मशक्कत जरूरी है। आज मेरे लिए पढ़ाना जितना आसान सा लग रहा है, क्या ये उतना ही आसान है आपके लिए सोचने में, या मेरी एक रिगरस परसिवरेंस है? समझ गए ना? तो वही रिगरस परसिवरेंस आपको बनानी है, और वो बनाते बनाते आपकी आदत पड़ जाएगी, एंड इट विल बिकम अ वे ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट मी। हंस हंस के बात करना, खुशी से बात करना, खुशी बात ना करे तो किसी और से बात करना, तो हो जाए। अगला देखिए, प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूअर्स। आपको इंटरव्यूअर के लिए सवाल भी तैयारी करने पड़ेंगे। जैसे आपको सबसे पहले तो अपने थॉटफुल क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, जॉब के बारे में, आईबी वर्क प्रोफाइल के बारे में, और क्या क्वेश्चन आप उनसे पूछवाना चाहते हो, विच क्वेश्चन यू वांट देम टू आस्क यू। उन क्वेश्चंस को भी आंसर के अंदर आपको जनरेट करना पड़ेगा। हर आंसर के अंदर उस आंसर में वो लास्ट लाइन छोड़नी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को आपसे जनरेट कर सके। उसको सीखना है आप। अपने इंटरव्यू के अटायर के तौर पे थोड़ी सा देख लेंगे, इसके ऊपर मैं ड्रेस कोड की वीडियो बना दूंगा। आपका इंटरव्यू गर्मी और सर्दी के बीच में ही पड़ेगा, गर्मियां ही होंगी, लेकिन कोट मैंडेटरी बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे जाना है, ड्रेस कोड साहिल मित्तल लिखना है और वीडियो देख लेनी है फिलहाल के लिए। लेकिन जिन बच्चों को पर्सनली हम कुछ सलाह देंगे, और बैच के अंदर ये भी कोशिश करेंगे कि हम आपका एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी करा लेंगे, मतलब जो भी है प्रोफेशनल ड्रेस में एक बार आप दिखा दोगे, ऑफलाइन भी दिखा दोगे, ऑनलाइन भी दिखा दोगे, तो हम लोग अप्रूव कर देंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद साइकोलॉजिकल रेडीनेस रखनी है। इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस पोजीशंस कैन बी इंटेंस एंड समटाइम्स डिजाइन टू सी हाउ यू हैंडल प्रेशर।
यू हैव टू स्टे काम, टेक डीप ब्रेथ्स एंड मेंटेन अ कॉन्फिडेंट रिस्पेक्टफुल डिमीनर थ्रू आउट। तो आज एक वर्ड मैं आपको देके जा रहा हूँ, डिमीनर। आप सब लोग इस डिमीनर का मीनिंग, सेंस, रेफरेंस और तरीका खोजेंगे। क्या आप में ये शब्द सच में एग्जिस्ट करता है, यानी डिमीनर। जितने लोगों को इसका मीनिंग पता है, अच्छी बात है। जितने लोगों को मीनिंग के साथ इसका सिग्निफिकेंस भी पता है, बहुत अच्छी बात है। पर जिन बच्चों के अंदर ये पहले से क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, आप अपने आप को आज से ही सेलेक्टेड मान लीजिए। और जब भी आपने देखा होगा, हम किसी बच्चे से बात करते वक्त बोलते हैं, भाई मेरे को तेरे मार्क्स नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ तू इंटरव्यू में सेलेक्ट है, तो सिर्फ हम क्या चेक कर रहे होते हैं उस बच्चे का डिमीनर। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 70% से ज्यादा बच्चों का डिमीनर वैसा नहीं है जो आईबी के द्वारा एक्सपेक्टेड है, रिक्वायर्ड। हाँ जी, फ्रूटफुल सेशन। अब तो कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। अब बात आ रही है, अब डेट वेट भी नहीं पूछेगा कोई। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है, सर साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है। हाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट, है क्या नहीं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। एक बात बताता हूँ, जब मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगा, अपने अपने पेरेंट्स को जरूर शेयर करना लिंक, और उनको बोलना कि देखो आपने हमारी कितनी अच्छी साइकोलॉजी सेट की है। ये जो तुम घर में झगड़ा करते रहते हो, इससे हमारा कितना दिमाग खराब रहता है। अब एक महीने के लिए माथाफोड़ी नहीं करनी आपस में, समझ गए। असर पड़ता है ना घर की चीजों का। मान लो कोई किसी के कोई आदमी कोई कह के कुछ चला गया, और वो तो चलो डिस्क्रिप्टिव से पहले कह के गया तो मैनेज हो गया। फिर आपको मान लो 10 दिन के लिए सर्दी जुकाम हो गया, फिर और दिमाग में प्रेशर हैंडल कैसे करो। तो मन और मस्तिष्क और मतलब शरीर को स्वस्थ रखना है ना। हाँ, बहुत अच्छी। हिमांशु क्या कह रहे हैं, सर मैं आपकी वीडियो डैड से शेयर नहीं करता, मेरे डैड आपकी वीडियो मुझे शेयर करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में देखेंगे, कॉपी पेन निकालो, नोट कर लो थोड़ा सा। थोड़ा सा होता है मेरे इन्फेचुएशन ऑन लाइटर साइड। चलिए देखते हैं। मैं तो कल भी गड़बड़ करने वाला था। मैंने छोड़ दी। चलो देखो, अंडरस्टैंड द टेस्ट कंपोनेंट। सबसे पहले पर्सनैलिटी चेक होगी इसमें। होएगा क्या इसके अंदर, आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बिठाया जाएगा, और उसमें मान लो 100, 150 या 200 क्वेश्चन होंगे, और उसमें 5 तरह के ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा न्यूट्रल, दूसरा एग्री, तीसरा डिसएग्री, चौथा स्ट्रांगली एग्री, और पांचवा स्ट्रांगली डिसएग्री। ऊपर एक या तो सिचुएशन दी होगी क्वेश्चन में, सिचुएशन, या फिर एक पिक्चर बनी होगी। ये वो है जो पिछले साल पूछा गया है। इस बार इसके पैटर्न में कुछ चेंज होने के चांसेस भी हैं, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे अपने बैच के अंदर, कि कब कौन सी क्वेश्चन में न्यूट्रल लगाते हैं, कब स्ट्रांगली एग्री लगाते हैं, कब स्ट्रांगली डिसएग्री लगाते हैं, और कब एवरेज एग्री या एवरेज डिसएग्री लगाते हैं। क्लियर है। पिक्चर के सेंस में राइट पिक्चर का इंटरप्रिटेशन करना कैसे है, अप्रोच क्या लेके चलनी है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह, वो हम हर पिक्चर दिखाएंगे यहाँ, जो वहां आपको दिखाई जाएगी, या उनमें से कुछ 10-12 पिक्चर दिखा दें, ताकि एक आपकी अप्रोच बन जाए। क्लियर है। ये मेरे को रुद्रानी थोड़ा सा अलग से बता देना। उसके बाद इस पूरे एसआरटी और पिक्चर से जो आप ये सब लगाओगे निशान, न्यूट्रल ये वो, इससे ग्राफ तैयार होगा, और उस ग्राफ का प्रिंट आउट निकाला जाएगा, और उस ग्राफ का प्रिंट आउट आपके इंटरव्यू टेबल पर जाएगा, और वो उस ग्राफ से जो इंटरप्रिटेशन निकलेगी कि आपके अंदर इंटीग्रिटी कितनी है, स्ट्रेस टॉलरेंस कितना है, और टीम वर्क कितना है, ये वाली चीजों का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जाएगा। और जो पर्सन जिस चीज में ज्यादा लैक करेगा, उससे उसी तरह की एसआरटी इंटरव्यू में पूछी जाएगी और चेक की जाएगी। अब बताओ समझ में आया नहीं? क्या मैंने ये पहले बताया था ऐसे? नहीं, साफ सुथरी चीज बता दी। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी चीज, इसके अंदर जो चीज ऐड हो सकती है, इसके अंदर वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टेस्ट को ऐड किया जा सकता है आने वाले दिनों में, कुछ नया पैटर्न जो बनेगा, तो इसके लिए भी मैं आपको तैयार कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग या लॉजिकल, ये वैसा नहीं है जो प्रीलिम्स में पढ़कर आए हो। साइकोमेट्रिक की अलग लेवल होता है, और एज ए साइकोमेट्रिशियन मैं इस बात को कह सकता हूँ, यू विल फील द डिफरेंस व्हेन यू आर टॉट, ये चीजों में डिफरेंस कितना। उसके बाद आपको सैंपल टेस्ट हम देंगे बहुत सारे, उसको आपको सॉल्व करने के लिए देंगे लाइव। ये कभी भी प्रैक्टिस के लिए आपको, स्पीड टेस्ट के लिए घर के लिए नहीं दिए जाएंगे, ये हमेशा लाइव करवाए जाएंगे, और इसलिए इसमें आपको लाइव प्रेजेंट होना जरूरी है हमारे साथ। ठीक है। उसके अलावा इसके लिए हम आपके टेस्ट स्किल के तौर पर आप अपने तौर पर भी कर सकते हो, और इसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट को बनाओ, अपना सोने और उठने का टाइम बनाओ पूरे दिन। जो साइकोलॉजी को अच्छी करना चाहते हैं उसके लिए कुछ नियम दे रहा हूँ, और इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो और भी बनाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करो, जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है उन बच्चों की साइकोलॉजी अच्छी होती है। फिर जब भी कोई टेस्ट दो, एक्यूरेसी और स्पीड पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी सबसे अच्छी होती है। उसके बाद बेसिक स्किल के ऊपर काम करो, जैसे आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स की, लैंग्वेज की, लॉजिकल रीजनिंग की, सबकी थोड़ी थोड़ी टेस्ट की अपने से तैयारी करते रहो।
मेंटल एक्सरसाइज करो, बहुत सारी पजल्स किया करो, सुडोकू खेला करो, वर्ड गेम खेला करो। और जो लोग सुडोकू खेलें, पजल खेलें और जिनका 1 महीने तक मन लग जाए, वो फिर हॉबी में यही सब बताओ कि मेरे को पजल करना पसंद है, सुडोकू खेलना पसंद है, कितनी अच्छी लगेगी। क्योंकि जो पर्सन पहले से ही टेढ़ी मेढ़ी एक्टिविटी हॉबी में कर रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा काम एज एन आईबीएसई भी तो कर लेगा या नहीं। ओ, समझ में आ रहा है साइकोलॉजी का खेल। जो पर्सन पहले ही ट्रैवलिंग करना अपनी हॉबी बता रहा है कि महीने में 2 बार तो हमारे चक्कर लगते ही लगते हैं जी कहीं ना कहीं, तो वो बताओ फील्ड जॉब कर लेगा या नहीं आईबीएसई में। यस। जिन पर्सन को ड्राइविंग करने का शौक, देखिए अब मैं एक और क्वेश्चन का आंसर देता हूँ याददाश्त के हिसाब से। एक क्वेश्चन का आंसर और देता हूँ। अगर जिन लोगों को ड्राइविंग करने का शौक है, वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर खुद बैठ के, 2 को बिठा के, 10 को बिठा के, हैवी प्रेशर सिचुएशन में ट्रैफिक में से अलग अलग स्पीड में निकाल के चला सके, और वो हॉबी है उनकी। और आपका कई साल से आपके पास एक वैलिड डीएल भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, यानी आप वैलिड तरीके से चलाते हो, तो ये भी आपकी हॉबी है। ये काम भी तो करना पड़ सकता है किसी दिन आपको। तो क्या ये हेल्पफुल रहेगी या नहीं। तो ना केवल इसको हॉबी में बोलना, बल्कि अपनी पर्सनालिटी के अंदर लेकर आना बहुत जरूरी है। और दिल्ली के इंटरव्यूज के अंदर पिछली बार जो इंटरव्यूज हुए थे, 90% गर्ल्स का पहला क्वेश्चन यही था, क्या ड्राइविंग आती है आपको। अब समझ में आया। इसलिए अपने आप को इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाना है। और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए डेली कम से कम 2 न्यूज़पेपर से 2-2 पेज न्यूज़ पूरी पूरी पढ़नी है, नोट्स बनाते हुए पढ़नी है, और शाम को बैठ के 1 घंटे के लिए उसी नोट्स को मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। उस पूरी न्यूज़ को विजुअलाइज करना है, उस पूरी न्यूज़ का वीडियो लेक्चर कहीं ना कहीं देखना है कि कैसे बम फटा होगा, कैसे चीजें हुई होगी। क्योंकि जिस पर्सन का जैसा पिक्चर परसेप्शन होगा, वो वैसा ही पैटर्न न्यूट्रल, अग्री, डिसएग्री में दे पाएगा। यस और नो। पैटर्न के चेंज होने की संभावना है, इसलिए मैं आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज वर्कशॉप के अंदर करा दूंगा। इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, ऑनलाइन सोर्सेज को, रिलायबल सोर्सेज को देखें, करंट इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, जनरल अवेयरनेस अपनी बढ़ाएं, और ताकि आप साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन में बहुत बढ़िया काम कर सकें। तो इस पूरी सेशन के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @IB एग्जाम के साथ जुड़ सकते हैं, और आईबी एग्जाम के अंदर आपको हम ये सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया कराने वाले हैं। उसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़ें, और कोई मेल और कोई क्यूरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं beatinterview@gmail.com। हम सबसे पहला स्लॉट 1 बनाने जा रहे हैं इंटरव्यू का, और स्लॉट 1 सिर्फ इंटरव्यू का रहेगा, और ऐसे ही साइकोमेट्री का बैच रहेगा। साइकोमेट्री का बैच बिल्कुल अलग रहेगा। साइकोमेट्री के अंदर कोई भी एडमिशन की वो नहीं है कितने नंबर्स में होगा, लेकिन इसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे पहले बैच में सिर्फ 100 बच्चे ही रखें, और ये 10 दिन का आपके पास बैच होगा। स्लॉट 1 जो इंटरव्यू का होगा, वो 10 डे का बैच होगा। इसकी फीस क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसमें कंडीशंस क्या होगी, इसके लिए मैं आपके पास डेडिकेटेड वीडियो शाम तक या कल तक आपके पास दे दूंगा, और अगले वीक से हम इसकी क्लासेस, वीक से पहले पहले इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। सो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे, चाहे मॉडल आंसर्स की बात हो, सेफ स्कोर की बात हो, या फिर आपको इंटरव्यू में कितनी मेहनत करनी है, साइकोमेट्री का सिलेबस क्या है, या डेट कब आपके पास चीजें आ सकती हैं। आप आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।